in the world, uh, people look for refreshment. और इस संसार में लोग जो है वो ताजगी को खोजते हैं. There are ways in which they look for refreshment. और अलग अलग चीजों से वो ढूंढते हैं कि वो कैसे ताजे हो सकते हैं. Yeah, some of them would take their family and go for an outing. और कुछ लोग हैं शायद अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं. So that they think that they can relax themselves. और उनको लगता है इससे उनको आराम मिलेगा. And some people would take their family for having food together during the weekend. और कुछ परिवारों में हफ्ते के अंत में एक साथ भोजन करके उनको लगता है कि वो ताजे हो सकते हैं. And there are people I know in my place, Goa, they would go to beach and relax themselves. और मैं जहाँ रहता हूँ गोवा में, वहाँ लोग बीच में जाना पसंद करते हैं और वहाँ आराम करना पसंद करते हैं. Yeah, there are some people who would love to look at the nature and find relaxation for their mind. और कुछ लोग हैं जिनको बहुत ही जहाँ सुंदर जगह होती है, जहाँ नेचर या प्रकृति अच्छी है, वहां जाकर वो अपने मन को शांत करना चाहते हैं. Whatever I have just mentioned, there is nothing sin in it. और जो कोई बातें मैंने अभी कही, इनमें से कोई भी बात में पाप नहीं है. Yeah, we need relaxation because all of us are working in a very tight environment because of our busy schedule, job demand, so many pressures we go through in life. और हम सबको आराम करने की जरूरत है क्योंकि हम इतने दबाव के अंदर, तनाव के अंदर काम करते हैं. हमारे जीवन में अलग अलग संघर्षों से हम जूझ रहे होते हैं, इसलिए हमें इनकी जरूरत होती है. Yeah, these are the things definitely will give us relaxation to our mind and to our family members. और ये बातें सारी करने से हमारे मन को भी आराम मिल सकता है, हमारे परिवार वालों को भी आराम मिल सकता है. But I just want to speak about a refreshment which is beyond this. पर मैं एक ऐसे ताजगी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इन सबसे बढ़कर है. Because there are people in the world, they may not be able to have what I just mentioned right now. क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी हैं जिन बातों का मैंने अभी जिक्र किया, उनमें से कोई भी बात शायद वो नहीं कर पाएंगे. But they can have the refreshment which comes from God. पर वे उस ताजगी को पा सकते हैं जो परमेश्वर के द्वारा आती है. Even if they won't be able to take their family for an outing, यद्यपि वे अपने परिवार को बाहर घूमने के लिए न ले जा सके, फिर भी, or even if he's that the head of the home is not able to take the family to have a dinner together in a restaurant, या कोई परिवार का जो मुखिया है वो उस परिवार को किसी खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में न ले जा सके, फिर भी, but such a person still can receive refreshment which comes from God. और इन सब के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से आने वाली उस ताजगी को प्राप्त कर सकता है. And how we can receive that refreshment is mentioned in the Bible. और हम इस ताजगी को कैसे पा सकते हैं, ये बाइबल में लिखा है. If you turn your Bible to Acts chapter 3 verse 19. प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 19 वचन. The background here is और इस वचन का संदर्भ ये है, Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer. You will find it in verse 1. और पहले वचन में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे. And there was a lame man sitting at the gate of the temple, and he was asking for alms from those who enter the temple. और वहां एक लंगड़ा व्यक्ति था जो मंदिर के द्वार पर बैठकर सब लोगों से भीख मांग रहा था. That is the time Peter and John enters into the temple. इसी समय पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में प्रवेश करते हैं. And this helpless man were looked at them for help. और ये जो असहाय व्यक्ति था, इसने उनकी ओर सहायता के लिए देखा. And in verse 6 we will find Peter said to him, silver and gold I don't have, but what I do have I give it to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. और 6 वचन में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर. And there we find God did a miracle in the name of Jesus.
और वहां हम पाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से एक चमत्कार किया। And the people who saw this miracle started admiring Peter and John. और जिन लोगों ने इस चमत्कार को देखा वो पतरस और यूहन्ना को सराहने लगे, उनकी तारीफ करने लगे। And Peter said to them, I'm only a signpost. We are pointing towards Lord Jesus Christ. और पतरस ने कहा, हम तो सिर्फ रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर दिखा रहे हैं। And he began to preach the gospel to them. और फिर वो उन्हें सुसमाचार प्रचार करने लगता है। And the part of the gospel is verse 19. और सुसमाचार का एक हिस्सा है 19वां वचन। Repent, therefore be converted, that your sin may be blotted out, so that times of refreshment may come from the presence of the Lord. इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए या ताजगी के दिन आए। Yeah, in this verse, it is clearly mentioned how the refreshment we can receive, which comes from God. और इस वचन में बिल्कुल स्पष्टता से बताया गया है कि हम उस ताजगी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से आती है। It says that we need to repent, therefore, and be converted. और यहाँ लिखा है कि हमें मन फिराने की जरूरत है और लौट आने की या रूपांतरित होने की जरूरत है। And some people think that repentance is once for all. और कुछ लोगों को ये लगता है कि मन फिराव जो है वो एक ही बार जीवन भर के लिए हमें करना होता है। It is not a once for all experience, it is a continuous process. ये एक ही बार में खत्म होने वाला अनुभव नहीं है, बल्कि वो दिन प्रतिदिन निरंतर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है। Yeah, it is true that somewhere in our life we begin some point. हाँ, ये सच है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम मन फिराव का आरंभ करते हैं। That we call it as a born again experience in our life. उसको हम कहते हैं हमारे जीवन में नया जन्म पाने का अनुभव। But we need to walk in that path till God gives the last day on this earth or till Christ comes back. पर हमें उस मार्ग में तब तक चलना है जब तक हमें प्रभु इस धरती पर हमारा आखिरी दिन ना दे या जब तक मसीह वापस ना आ जाए। And this is one of the message which is missing in today's Christian messages. और आज के मसीही जो प्रचार या संदेश है उनमें से ये एक गायब या विलुप्त संदेश है। Yeah, most of the preachers would say about other side of the truth that you believe in Jesus Christ and you shall be saved. और कई प्रचारक जो है वो सत्य के दूसरे हिस्से को ही जोर देते हैं कि मसीह यीशु में विश्वास करें और आप उद्धार पाएंगे। But that is an incomplete truth because it's only the one side of the truth. पर ये एक अपूर्ण सत्य है क्योंकि ये केवल सत्य का एक ही भाग, एक ही हिस्सा है। Other side of the truth is we need to repent. और उसकी दूसरी ओर ये है कि हमें मन फिराव करने की आवश्यकता है। And I was just reading from Living Bible paraphrase version. और लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है उससे मैं पढ़ रहा था। There it's mentioned repent means change your mind and purpose. और वहां लिखा है मन फिराने का मतलब है अपने मन और अपने उद्देश्य को बदल दो। Yeah, so repentance is not just simply shedding tears. और मन फिराव का मतलब केवल ये नहीं कि हम आंसू बहाते हैं। Yeah, sometimes we can have a experience where we shed tears, and sometimes that tears may not have depth in our life. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई आंसू बहाने का अनुभव हो, पर वो आंसू जो है उनकी हमारे जीवन में कोई गहराई नहीं है। Why I use the word it has no depth? Because after while we are back into the same old life. क्यों मैं ये कहता हूँ कि उसमें गहराई नहीं है? क्योंकि कुछ समय बाद हम फिर एक बार उसी जीवन में लौट आते हैं। But the true repentance have to do it with our mind and our purpose of life. पर सच्चा मन फिराव जो है वो हमारे मन से और हमारे जीवन के उद्देश्य से हमें करना है। And it says that and be converted means you have to turn around and return to God. और फिर जहां लौट आने के विषय में लिखा है वहां हमें पीछे मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना है। Until that point, we were living for ourselves. We were living for the desires of our flesh and mind. उस समय तक हम अपने आप के लिए जी रहे थे और हमारे शरीर और हमारे मन की इच्छाओं या लालसाओं के लिए हम जी रहे थे। And we led our life by our self-will. और हमने अपने जीवन को अपने स्वयं के इच्छा के द्वारा ही व्यतीत किया था। And
our life was governed by what we thought to be best for us. और हमारा जीवन हमें क्या सही लगता है इसी बात से अनुशासित था। But in those moments, God was not at the center. पर उन दिनों या उन क्षणों में परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र स्थान नहीं था। And when we really repent and turn to God, God becomes the center of our life. पर जब हम सचमुच में मन फिराते हैं और लौटते हैं या मुड़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र स्थान बनता है। And I still remember when Jesus came into my heart, और मुझे अभी याद है जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, and one of the way in which I responded to God that time, और एक मार्ग जैसे मैंने उस समय परमेश्वर को प्रतिक्रिया दी थी, and it was when I think I was just 18.5 years old. और शायद तब मैं केवल 18.5 वर्ष का था। I was studying in a college and I was in the hostel. और मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और एक हॉस्टल में मैं रहता था, I was all alone और मैं अकेला था। and I was thinking about my life, और मैं अपने जीवन के विषय में सोच रहा था, and all of a sudden the Spirit of God brought such a conviction in my life. और अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में ऐसी एक एहसास को लाया, And I began to weep. और मैं रोने लगा। And one of the reason why I wept was, Lord, until this point, it was me who was sitting on the throne. और एक कारण क्यों मैं रो रहा था वो ये था कि प्रभु, आज तक मैं ही अपने जीवन के सिंहासन पर बैठ रहा था, And I pushed you out of my boundary. और मेरे सीमाओं के बाहर मैंने तुझे ढकेल दिया। And even though you have created me, यद्यपि तूने मुझे बनाया है, and I truly repent of that. और मैं सचमुच इससे मन फिराता हूँ। When I prayed, Jesus come into my heart, I really meant, Lord, you take the, the throne of my heart. और जब मैंने प्रार्थना की कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, तब मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, तू मेरे जीवन के सिंहासन पर बैठ जा। Yeah, that is a true repentance. So there is a 180-degree turn in your life. और ये सच्चा मन फिराव है जहां आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है या आप पीछे मुड़ते हो। And any person who goes through that process continually experience a refreshment which comes from God. और कोई भी व्यक्ति जो इस प्रक्रिया से होकर गुजरता है, वो निरंतर परमेश्वर से आने वाली ताजगी को महसूस करेगा। And another thing which is mentioned in the Bible, और बाइबल में एक और बात जो लिखी है, Hebrews chapter 1 verse 9, इब्रानी उसका पहला अध्याय और 9वां वचन, it says about Jesus Christ, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. और यीशु ने यहाँ यीशु के विषय में लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। And in the life of Jesus, और यीशु के जीवन में Jesus, there was no need for repentance, मन फिराव की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, because from the day one onwards he lived for God. क्योंकि पहले दिन से ही वो परमेश्वर के लिए जी रहा था। But Jesus continually received refreshment which comes from the Father. पर यीशु ने निरंतर उस ताजगी को प्राप्त किया जो पिता की ओर से आती है। And the word says oil of gladness more than your companions. और वचन कहता है कि तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल को उसने ग्रहण किया। And not because he was a son of God, the Father has given him this privilege. इस वजह से नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र था कि पिता ने उसको यह सौभाग्य दिया, But it's mentioned because Jesus loved righteousness and hated sin in his life. पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह अपने जीवन में धर्म से प्रेम करता था और अधर्म से बैर रखता था, घृणा करता था। And this is another way in which we can receive God's refreshment coming in our life. ये एक और तरीका है जिससे हम परमेश्वर से आने वाली ताजगी को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। And not only we turn away from sin, we come to a level where we begin to hate sin. ना केवल हम पाप से पीछे मुड़ते हैं, हम एक ऐसे स्तर तक आ जाते हैं जहां हम पाप से घृणा या नफरत करने लगते हैं। I'm not saying that I've reached that, but it's my longing. God, please lead me to that life.
मैं ये नहीं कह रहा मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूं, पर ये मेरी लालसा है कि प्रभु कृपया मुझे ऐसे जीवन में ले आइए। And if you take in chemistry, for example, they say if you want to increase the rate of reaction, और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, किसी रिएक्शन को अगर आप और तेजी से उसको करना चाहते हो तो, they say you'll have to use certain catalyst. और वहां आपको ऐसे कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वो तेजी बढ़ती है, जिसको कैटलिस्ट कहते हैं। And I have seen there are two catalysts which is mentioned in the Bible, और मैंने देखा है कि बाइबल में ऐसे दो बातें लिखी गई है जो कैटलिस्ट है, जिनसे इसकी तेजी बढ़ जाती है, and which helps me to repent, जो मेरी सहायता करता है कि मैं मन फिराऊं, and which helps me to hate sin. और जो मेरी सहायता करता है कि मैं पाप से नफरत करूं। And to me, both are important. और मेरे लिए दोनों ही जरूरी है। And the first catalyst I found from the scripture, from my own experience, is love of God. और पहला कैटलिस्ट जो मैंने पाया है परमेश्वर के वचन से, वो है परमेश्वर का प्रेम। And if you turn your Bible to 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 14 और 15 वचन। For the love of Christ compels us, because we judge this, that if one died for all, then all died, and he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। And here Paul is mentioning about the love of Christ which is compelling him. और यहाँ पौलुस मसीह के प्रेम के विषय में बताता है जो उसको विवश कर रहा है, And something which his mind cannot truly comprehend, और ऐसा कुछ जिसको उसका मन वास्तविकता में समझ नहीं सकता, because he knew that he was a persecutor, he was against the body of Christ, and he want to destroy the church. क्योंकि वो जानता था कि वो एक सताव करने वाला था, वो मसीह की देह के विरोध में था और वो कलीसिया का नाश करना चाहता था। And in spite of all that, God still loved him. और इन सब के बावजूद प्रभु परमेश्वर ने फिर भी उससे प्रेम किया। And I mean, that has really melted his own hardened heart. और इस वजह से उसका जो कठोर किया हुआ हृदय था वो पिघल गया। And most of the believers would say that this verse 14 latter part, one died for all, then all died. और अधिकतर विश्वासी 14वें वचन के अंतिम भाग को कहेंगे कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। And it's true that the believers believe that Jesus died for the world. और ये सच है कि विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस संसार के पापों के लिए मरा। But in the life of Paul, he went beyond that, पर पौलुस के जीवन में वो इससे भी बढ़कर आगे गया था, which he mentioned in verse 15. He died for all, that those who live should live no longer for themselves. वो कहता है वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। The reason he mentioned that in verse 15 latter portion, but for him who died for them and rose again. और इसका कारण वो 15 वचन के आखिरी भाग में कहता है, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। And Paul is saying, Jesus Christ has died for me and he rose again. Therefore, I should not live for myself. और पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और फिर जी उठा, इस वजह से मुझे अपने आप के लिए नहीं जीना है। So what he's saying that since Christ has did this for me, how in the world that I can live for sin, how I can live for my pleasure? और पौलुस कहता है क्योंकि यीशु ने मेरे लिए ये किया तो मैं कैसे पाप के लिए जी सकता हूँ, कैसे मैं खुद के सुख विलास के लिए जी सकता हूँ। And not only Christ died for us, he did more than that. ना केवल यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसने हमारे लिए उससे भी अधिक कुछ किया। And which Paul mentioned in the same chapter, if you read it down, verse 21. जो पौलुस उसी अध्याय में जिसका जिक्र करता है 21वें वचन में, For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया
कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। And here Paul is saying that Father has made Jesus Christ, who knew no sin in his life, he becomes sin for us. यहाँ पौलुस कह रहा है कि पिता ने यीशु मसीह को, जिसने अपने जीवन में किसी पाप को नहीं जाना था, हमारे लिए उसको पाप बनाया। And taking our sin upon himself itself is a great sacrifice. हमारे पापों को अपने ऊपर, उसके ऊपर लेना, ये ही बहुत बड़ा बलिदान था। But it says that Jesus becomes sin for us. पर यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना। And why did Jesus become sin for us? So that the righteousness of God in him might become true in us. और क्यों यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना? कि परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो हम में सच हो जाए। So this is not speaking about justification. और ये धर्मी ठहराए जाने के विषय में नहीं लिखा है। Justification means the moment we repent and put our belief in Christ, the righteousness of Christ is credited into our account. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब है जिस क्षण हम विश्वास करते हैं उस क्षण मसीह यीशु का जो धार्मिकता है वो हमारे खाते पर मानो आ जाती है। But this is speaking about the sanctification process, पर ये पवित्रकरण की जो क्रिया है उसके विषय में लिखा है, where the life of God becoming more and more manifesting in our life. जहां परमेश्वर का जीवन अधिक अधिक हमारे जीवन में प्रकट होता है। And what is the thing which has motivated Christ? Motivated Paul was he knew that Christ becomes sin for him. और किस बात ने पौलुस को प्रेरणा दी? तो वो ये थी कि वो जानता था कि मसीह उसके लिए पाप बना। And it's true that I myself am not really able to comprehend और ये this सच है कि wonderful truth which is mentioned here. और ये सच है कि मैं खुद इस अद्भुत सत्य को जो यहाँ लिखा है उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाता। And only the illustration which I heard, और जो चित्र इसके विषय में, उदाहरण में इसके विषय में जो मैंने सुना, and even though that is the best illustration, यद्यपि वो बहुत अच्छा उदाहरण है, but even though it is the best illustration, but to me, we cannot equate that to. और यद्यपि वो सबसे अच्छा उदाहरण है उसके बावजूद वो इसके बराबर नहीं है। The illustration which I heard is, imagine, I think we all are brought up in a very hygienic environment. और जो उदाहरण मैंने सुना, हम सब जो है बहुत ही साफ सुथरे जगह में या घर में हम बड़े हुए हैं। And imagine all of a sudden we've been asked to stay in a slum. और सोचकर देखिए कि अचानक अगर कोई हमसे कहे कि हमें एक झुग्गी झोपड़ी में जाकर रहना पड़े तो। And we know that it's not an easy, और हम जानते हैं कि ये आसान नहीं है। because if that being asked for by me to do it, I myself will find it difficult to do it. क्योंकि अगर मुझसे ये कहा जाए तो मैं खुद इसको, मेरे लिए ये बहुत कठिन होगा। But imagine Jesus, who lived with the Father with perfect environment, he been asked to come into this earth, which is a sin-trodden world. पर सोचकर देखिए, यीशु मसीह जो पिता के साथ एक सिद्ध जगह रहता था, उसको इस पृथ्वी पर आना पड़ा जो बिल्कुल पाप से भरी हुई ये पृथ्वी है। And even though he lived in this sinful world, but he never polluted himself with sin. और यद्यपि वो इस पापी संसार में जिया, उसने कभी अपने आप को पाप से भ्रष्ट नहीं किया। He kept himself pure. उसने अपने आप को शुद्ध रखा। But on the cross, Father made him to become the sin. पर उस क्रूस पर परमेश्वर ने उसको पाप बनाया। And Jesus knew that the day he becomes sin, that moment he will lose his fellowship with the Father. और यीशु मसीह इस बात को जानता था कि जिस दिन वो पाप बनेगा उस दिन वो अपने पिता के साथ उस संगति को खो देगा। And something Jesus cherished for eternity. और ये ऐसी बात थी जिसको यीशु मसीह अनंत काल से बहुत प्रिय जानता था। The fellowship with the Father. उसके पिता के साथ ये संगति। The Lord never wanted to miss that, not even 1 second in his life. प्रभु इस बात को अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी खोना नहीं चाहता था। It says in, I think Luke, it says that there was a 3 hour, there was a shadow. The earth was full of darkness when Jesus hung on the cross. और लूका में लिखा है जब यीशु मसीह उस क्रूस पर था तो 3 घंटे के लिए अंधकार इस पृथ्वी पर छा गया। I think it is from 12 noon to 3 o'clock in the afternoon.
शायद 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। And that is the time we know that the Father has forsaken him. और ये वो समय है, हम जानते हैं, जहां पिता ने उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया। And that's why Jesus cried from the cross, God, God, my God, why have you forsaken me? और इसी वजह से यीशु मसीह ने उस क्रूस से पुकारा था कि हे पिता, हे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। That's the reason why Jesus prayed intensely 3 times in the Garden of Gethsemane, saying to the Father. और यही कारण था कि क्यों यीशु मसीह ने गत्समनी के बाग में 3 बार बहुत तीव्रता से प्रार्थना की, saying to the Father, Father, if it is your will, please take away this cup. पिता को ये कहते हुए कि प्रभु, अगर तेरी इच्छा हो तो इस प्याले को तू हटा दे मुझसे। But Father did not answer his request. पर पिता ने उसकी विनती नहीं सुनी। But Father asked him to drink that cup. पर पिता ने उसे कहा कि वो उस प्याले को पी ले। Why my Lord drank that cup was because of me. क्यों मेरे प्रभु ने उस प्याले, उस कटोरे से पिया, वो मेरे वजह से था। Thinking that one day my son will become righteousness of God. ये सोचते हुए कि एक दिन मेरा बेटा परमेश्वर की धार्मिकता बनेगा। And I want to have more and more vision of that Calvary's love. और उस कलवरी के प्रेम के विषय में मैं अधिक और अधिक उसकी दृष्टि चाहता हूँ। So that there will be continuous repentance in my life, turning away. ताकि मेरे जीवन में निरंतर मन फिरा हो, पाप से मुड़ना हो। Turning away from myself, turning away from things I know to be sin in my life. मेरे अपने आप से पीछे मुड़ना और जिन बातों को मैं जानता हूँ जो पाप है, उनसे पीछे मुड़ना। And another reason also mentioned regarding the love of Christ, Paul only mentioned through the Holy Spirit. He mentioned in Galatians chapter 3 verse 13. और एक और बात जो मसीह के प्रेम के विषय में पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस कहता है, वो है गलातियों chapter 3 verse 13. तीसरा अध्याय 13 वचन। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। And it says that Christ become curse for us. और यहाँ लिखा है कि मसीह हमारे लिए एक शाप बना। I mean, it's good to sometimes meditate upon these verses. और इन वचनों पर कभी-कभी मनन करना अच्छा है। So that our attitude towards sin will change. ताकि पाप के प्रति हमारा जो रवैया है वो बदल जाए। And why did Christ has become curse for us? It's mentioned in verse 14. और क्यों मसीह हमारे लिए शापित हुआ या शाप बना, वो 14 वचन में उसका कारण बताया गया है। That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Christ has become curse for me so that I can receive the blessing of God. मसीह मेरे लिए शापित हुआ क्योंकि ताकि मैं परमेश्वर के आशीष को पा सकूं। That I can receive the Holy Spirit. कि मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकूं। And all this truth helps me to turn away from sin. और ये सारे सत्य मेरी सहायता करते हैं कि मैं पाप से पीछे मुड़ूं। I think Peter says in 1 Peter chapter 2, later you can read, it says by his stripe you were healed. और पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय में कहते हैं कि उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हुए हो। And I think in verse 24 and 25 it says he is our shepherd. और 24 और 25 वचन में वो हमें कहता है कि वो हमारा चरवाहा है। And the reason why Father has allowed his son to go through that painful experience so that I will turn away from sin. और क्यों पिता ने अपने पुत्र को उस दर्दनाक अनुभव से जाने दिया, वो इस वजह से था ताकि मैं अपने पाप से पीछे मुड़ सकूं। And I pray that the love of God which manifested in Jesus will become more and more real in our life. और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह के जीवन में प्रकट हुआ था, वो हमारे जीवन में बढ़ते क्रम में वास्तविक हो जाए। I still remember my younger days, the love of Christ
used to compels me. और मुझे याद है मेरे जवानी के दिनों में मसीह का प्रेम मुझे सचमुच विवश करता था। Yeah, like any other young person, whenever I face temptation, in my life, और किसी भी अन्य जवान व्यक्ति के समान जब मैं अपने जीवन में किसी परीक्षा या प्रलोभन का सामना करता था, and this truth has always encouraged me to say no to sin. इस सत्य ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं पाप को नहीं कहूं। And another thing, another catalyst which I mention in the Bible is the fear of God. और एक और कैटलिस्ट जो है जो बाइबल में बताया गया है वो है परमेश्वर का भय। Yeah, to turn to second Corinthians chapter 7 verse 1. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय पहला वचन। Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। And we know that Paul is one of the apostles who spoke so much about the grace of God. और हम जानते हैं कि पौलुस ऐसा प्रेरित था जिसने परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बहुत कुछ कहा। And some believers think that grace of God means you don't need to speak about fear of God. और कुछ विश्वासियों को लगता है कि परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब है कि आपको परमेश्वर के भय के विषय में बात करने की जरूरत नहीं। But I'm not referring to the torment which comes from unhealthy fear. और एक अस्वस्थ जो भय होता है उससे जो आने वाली पीड़ा है, मैं उस विषय में बात नहीं कर रहा। But what which is mentioned here is a healthy fear of God. पर यहाँ जिस बात का जिक्र किया गया है वो है परमेश्वर का एक स्वस्थ भय। Yeah, when the grace of God works in our life, it also brings healthy fear of God in our life. जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है तो वो हमारे जीवन में एक परमेश्वर के लिए स्वस्थ भय को उत्पन्न करता है। I see it in my own life. I need both. I need to be compelled by the love of Christ. Also, I need to be compelled by the fear of God. और मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि मुझे दोनों बातों की आवश्यकता है कि मैं मसीह के प्रेम के द्वारा विवश हूँ और मैं परमेश्वर के भय के द्वारा विवश हो जाऊं। And that is how we can perfect in holiness. और इसी तरह हम पवित्रता में सिद्ध हो सकते हैं। Yeah, it is not fear of man, but it's fear of God. ये मनुष्य का भय नहीं बल्कि परमेश्वर का भय है। Yeah, like it says in Hebrews chapter 4 verse 13 that we all are naked before God. जैसे इब्रानियों 4:13 में लिखा है कि हम सब परमेश्वर के सामने मानो नंगे हो। Yeah, nobody can hide anything from him. उससे हम कोई भी कुछ नहीं छिपा सकता। Yeah, if we really believe that, it will truly bring fear of God in our heart. अगर हम इस बात को सचमुच विश्वास करते हैं तो वो ये हमारे मनों में परमेश्वर के भय को लाएगा। And Paul truly feared God, and that is why he mentioned in 1 Corinthians chapter 9. और पौलुस सचमुच परमेश्वर का भय रखता था, इसी वजह से वो पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में कहता है, verse 25 to 27. 25 से लेकर 27 वचन। And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats air, but I discipline my body, bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। So Paul feared in his life that he can miss reaching the destination in his life. और पौलुस के जीवन में यह भय था कि शायद मंजिल से पहुंचने से वो चूक जाएगा। And that's why he's saying that I want to discipline my body and bring it under subjection. और इसी वजह से वो कहता है कि मैं अपने देह को अनुशासित करके उसे वश में लाना चाहता हूँ। And because he had the fear of God in his heart. क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर का भय था।
and he never took the grace of God lightly. और उसने कभी परमेश्वर के अनुग्रह को सहजता से या हल्के में नहीं लिया। Any person who value the grace of God will have genuine fear of God in his heart or in her heart. कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के अनुग्रह को मूल्य देता है, वो जरूर उसके हृदय में परमेश्वर का भय होगा। And if we have the fear of God, what will happen will be we will turn away from sin. और अगर हमारे पास परमेश्वर का भय होगा तो क्या होगा? हम पाप से मुड़ेंगे। And even in the New Testament, we find lot of exhortation given in this context. और नए नियम में भी हम इस संदर्भ में कई हमारे लिए प्रोत्साहन पाते हैं। And even in book of Hebrews, we find so many warnings are given. और इब्रानियों के किताब में भी कई चेतावनियां हमें दी गई है। I just want to read only one passage, that is Hebrews chapter 12, verse और 14 to 17. इब्रानियों 12 उसका 14 से 17 में पढ़ना चाहता हूँ। It says, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, by this many become defiled, lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterwards, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. इब्रानियों 12 14 से 17। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे होने के पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। Here, we don't know who is the author of this book, हम नहीं जानते इब्रानियों की पुस्तक किसने लिखी थी, but it is written through the Holy Spirit inspiration. पर यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। And this is not written for the unbelievers. और ये अविश्वासियों के लिए नहीं लिखा है। And that's why here the author, we don't know which apostle this is, he's warning God's people that you pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. इस वजह से यहाँ जो लेखक है, यहाँ जो भी प्रेरित है, वो कहता है कि हम मेल मिलाप और उस पवित्रता के हमें खोजी बनना है जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। And in verse it says that you need to be very careful, that is you need to fear lest you fall short of the grace of God. और अगला वचन कहता है कि हमें ध्यान से देखना है, मतलब सचेत रहना है, जागते रहना है कि ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। And one of the way in which we can fall away from the grace of God, by allowing the root of bitterness to take hold in our heart. और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हटने का एक तरीका ये है कि हम अपने हृदय में कोई कड़वी जड़ पकड़ने देते हैं। Or it says about Esau, just for one morsel of food he sold his birthright just to find some satisfaction for himself. और या एसाव के बारे में जो लिखा है कि उसने एक बार के भोजन की वजह से अपने पहलोटे का हक बेच दिया, एक कुछ अपने लिए संतुष्टि पाने के लिए उसने उस हक को बेच दिया। Yeah, same thing can happen to us. Sometimes the devil will come and say to us, especially young people, that enjoy yourself, that nothing will happen. यही हमारे साथ भी हो सकता है। कई बार शैतान आकर जवान लोगों से कह सकता है कि अपने आप को आनंद उठाओ क्योंकि कुछ नहीं होगा। When I say enjoyment, there is a God-blessed enjoyment, which is mentioned here is enjoyment which comes out of doing sin. और आनंद या सुख जो है एक परमेश्वर द्वारा आशीष दिया हुआ भी आनंद और सुख होता है। यहाँ जिस आनंद या सुख के विषय में लिखा है वो सुख है जो पाप के द्वारा आता है। And here the author is warning us that you can come to a point that even though you want to return to God, and you will not be able to do that. और यहाँ लेखक ये चेतावनी देता है कि ऐसा एक समय आ सकता है जहां यद्यपि आपके अंदर ये इच्छा है कि आप मन फिराकर परमेश्वर के पास आओ, उसके बावजूद आप उसको नहीं कर पाओगे। Yeah, because if I let sin to
have power over me. If I take sin lightly, it is going to harden my heart. क्योंकि अगर मैं पाप को अपने जीवन पर सामर्थ माने देता हूं, अगर मैं उसको सहजता से हल्के से लेता हूं, तो वो मेरे हृदय को कठोर कर देगा। And the Bible warns us against that. और बाइबल हमें इसके खिलाफ हमेशा चेतावनी देती है। And how we can run away from this danger, it's through only fear of God. और कैसे हम इस खतरे से भाग सकते हैं, वो केवल परमेश्वर का भय रखने से है। And there are times I used to say to myself when I face temptation to ask myself, do I want only enjoyment now or have happiness when I meet the Lord? और ऐसे समय है जब मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया है, जब कभी मैं परीक्षा में पढ़ता हूँ या प्रलोभित होता हूँ, क्या मुझे सिर्फ सिर्फ अब के लिए आनंद चाहिए या मुझे तब खुशी होनी चाहिए जब मैं प्रभु को मिलूंगा। And sometimes I used to think the enjoyment which I get through doing certain things which is against God, is it worth for eternity? और कभी कभी मैं सोचता था, जो आनंद या जो सुख मुझे ऐसी कुछ बातें करने से मिलेगा जो परमेश्वर के खिलाफ है, क्या वो अनंत काल के तुलना में उसके योग्य भी है। And many times it has helped me that Lord, I don't want this. I want to turn away from that. और कई बार इसने मेरी सहायता की है कि प्रभु मैं ये नहीं चाहता, मैं इससे दूर हटना चाहता हूँ। And I want to conclude by saying God want to give us his refreshment. और मैं अंत करना चाहता हूँ ये कहते हुए कि परमेश्वर हमें उसकी ताजगी देना चाहता है, And which the world cannot give us. जो संसार हमें नहीं दे सकती। That is by repentance. वो है मन फिराने से। So the repentance, there are two things which help us to constantly repent. One is a love of God, other one is a fear of God. और दो बातें हैं जो हमारी सहायता करते हैं कि हम निरंतर मन फिराएं, एक है परमेश्वर का प्रेम और दूसरा है परमेश्वर का भय। And repentance is not just turning away from something we know to be gross sin. और मन फिराव केवल ये नहीं कि जिन बातों को हम जानते हैं कि ये कोई बड़े पाप है उनसे पीछे मुड़ना, केवल ये नहीं। Maybe sometimes the repentance can be we have a little slight negative attitude towards someone. God wants us to repent of that. कभी कभी मन फिराव ये भी हो सकता है कि किसी के प्रति हमारे मन में थोड़ा सा नकारात्मक एक रवैया या विचार है, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे भी फिर जाए। Or sometimes our heart goes after money, that love of money find a place in our heart. या कभी कभी हमारा हृदय पैसे के पीछे दौड़ता है और पैसे का प्रेम हमारे हृदय में कोई जगह पाता है। And there also we need to repent. और वहां भी हमें मन फिराने की आवश्यकता है। Repent of by saying, Lord, help me to put you first in my life. उससे हमें मन फिराना ये कहते हुए कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दूं। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।